today in this video of chapter number 5, that is principles of inheritance and variation. We are going to study about some of the genetical terms which are very important before we start with the Mendel's experiment, and we are also going to see why Mendel selected this pea plant. Okay, so let us start. So see, as I said you, we are going to study some of the genetical terms which are very important, and those genetical terms are also known as what? Terminologies. Fine. Now it is important to study this genetical term because when we carry out the Mendel's experiment, where all these terms will be repeated and it will come simultaneously, and if you do not know it prior, you will get confused that what this term means. Okay, so let us begin. सो सी फर्स्ट इज़ व्हाट जेनेटिक्स. जेनेटिक्स हमने पहले ही देख लिया था जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था. जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? इट्स अ स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड मैकेनिज्म्स ऑफ व्हाट? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन. फाइन. नाउ दिस जेनेटिक्स term was actually given by William Bateson in 1906, but the father of genetics is Gregor Johann Mendel. Why? Because Gregor was a scientist, or you can say Mendel was a scientist who first carried out those experiments and gave us an idea about the inheritance, right? But he didn't know what exactly is getting passed, so he didn't give name to that subject, but the term which was given by William Bateson in 1906, right? Okay, now next is what? Factors or element. Okay, now factors or element is nothing but what? It's a unit of heredity responsible for inheritance and appearance of characters. Fine. Now unit of, क्या बोल रहे हैं? यूनिट ऑफ हेरिडिटी है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इनहेरिटेंस के लिए. मतलब कि जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है या फिर जो कैरेक्टर है वो क्या होने वाला है? इट इज़ गोइंग टू गेट ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एंड वही कैरेक्टर हमें फिर क्या होगा? अपीयर होके दिखेगा. Right, so at the end those unit of heredity is nothing but what? Genes. Right, those unit of heredity is nothing but what? Genes. Right, so factors or element were actually used by Mendel because Mendel didn't know कि what is getting transferred from one generation to another, so he said there are some factors or elements which are getting transferred. Right, लेकिन बाद में वो पता चला कि ये factors जो है those are nothing but what? Genes, and it was the name was given by scientist known as Johansen. Okay, so Mendel ने factors और element use किया था for the term gene, but बाद में पता चला कि वो factors और elements और कुछ नहीं but क्या है? genes. so उसको नाम किसने दिया? जोहानसन ने. ओके, सो सी यो, दिस इज अ सेल. सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम. एंड क्रोमोसोम में हाईली कॉइल्ड क्या रहेगा? ये डीएनए. फाइन. अब ये डीएनए में ये जो छोटा सा सेगमेंट जो दिखाया है दैट इज कंसिडर्ड एज व्हाट? जीन. राइट, एंड ये भी याद रखना कि जीन जो है इट इज़ गोइंग टू कैरी व्हाट? इंफॉर्मेशन. ये तुम कोई भी कैरेक्टर पकड़ लो, सपोज कि तुम्हारा हेयर कलर है, आई कलर है, राइट, स्किन कलर है, हर एक कैरेक्टर जो है अपने बॉडी में हर एक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जीन. राइट, सो gene is nothing but what? It's a small segment on DNA which is going to carry the information. फाइन. अब देखो यही फैक्टर्स को जो मॉर्गन जो है ही फर्स्ट यूज्ड अ सिंबल टू रिप्रेजेंट इट. तो मॉर्गन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू रिप्रेजेंट अ सिंबल टू दिस फैक्टर्स. फाइन. तभी उसने कौन से सिंबल यूज़ किया? अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था, दो टर्म्स हमने पढ़े थे. राइट, एक देखा था अबाउट द डोमिनेंट, राइट, एंड दूसरा हमने क्या देखा था? रेसेसिव. राइट, जो डोमिनेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि ये कैरेक्टर्स वो होते हैं जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं. राइट, एंड रेसेसिव वो होते हैं कि वो डोमिनेंट के प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते. अगर वो अकेले हैं, इंडिपेंडेंट है, तो ही वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे. बाकी डोमिनेंट एंड रेसेसिव के साथ भी हो तो भी डोमिनेंट ही एक्सप्रेस होगा. समझा? तो मतलब कि अगर डोमिनेंट वाला जो भी कैरेक्टर था उसको मॉर्गन ने कैपिटल लेटर से डिनोट किया था. सपोज इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ अ स्टेम हाइट. राइट, इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? स्टेम हाइट. तो हमने देखा था कि स्टेम हाइट के दो टाइप्स है. एक होता है टॉल एंड दूसरा होता है ड्वार्फ. राइट,
सो टॉल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन अ कैपिटल लेटर दैट इज टी, एंड रेसेसिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, बाय स्मॉल टी, मतलब कि ड्वार्फ इज रेसेसिव, तो ड्वार्फ को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बाय स्मॉल लेटर टी, राइट। अभी तुम ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये कैपिटल लेटर टॉल है, तो टॉल डोमिनेंट है तो हमने उसको कैपिटल टी दिया, लेकिन ड्वार्फ अगर उसका रेसेसिव है तो स्मॉल डी आना चाहिए, तो हमने स्मॉल टी क्यों लिखा, राइट। सो ये तुम्हें कंफ्यूजन ना हो आगे चल के, इसीलिए जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका जो फर्स्ट लेटर है उसी से रेसेसिव वाले को भी स्मॉल लेटर से डिनोट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि आगे चल के कंफ्यूजन या ऐसे कोई भी केओस ना होना चाहिए। गॉट इट। सो दैट्स द रीज़न हम डोमिनेंट को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल टी से, आई मीन कोई भी कैपिटल लेटर से, एंड रेसेसिव को कैसे डिनोट करेंगे, बाय स्मॉल लेटर। फाइन टिल हियर, ओके। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, अलील, राइट। अभी हमने देखा कि जीन जो है वो क्या है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, कैरेक्टर्स, राइट। तो वैसे ही अलील जो है इट इज़ एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। क्या है अलील, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। जैसे कि इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ स्टेम हाइट, राइट, तो स्टेम हाइट जो है, मतलब कि हाइट जो है स्टेम का, वो तो प्लांट का एक कैरेक्टर है, राइट। क्या है ये, एक कैरेक्टर। और स्टेम हाइट के लिए भी प्लांट के अंदर जीन रिस्पॉन्सिबल होगा, राइट। तो जीन जो रिस्पॉन्सिबल है उसमें हमने दो टाइप के देखे, या तो प्लांट का हाइट टॉल हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, ड्वार्फ, राइट। सो भले वो जीन स्टेम के हाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कौन सा वाला प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ अ डोमिनेंट वाला या रेसेसिव वाला, वो तो डिपेंड होता है, राइट। सो ये टॉल और ड्वार्फ जो स्टेम हाइट के दो टाइप्स है उसको हम क्या बोलते हैं, अलील। क्या बोलते हैं, अलील। इसीलिए क्या बोला है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन के ये दो क्या है, अलील्स है, फाइन। एंड दे आर लोकेटेड ऑन सेम पोजीशन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम, राइट। अभी क्या बोला है, होमोलोगस क्रोमोसोम पे ये एक ही पोजीशन पे दोनों क्या होते हैं, लोकेटेड होते हैं, राइट। एंड दिस वाज कॉइन्ड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज बेटसन, राइट। सो बेटसन ने ये टर्म अलील दिया था। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है तो हम देख लेते हैं। So it is what morphological and structurally similar chromosome present in diploid cells, right। अभी हमें पता है जो भी इंडिविजुअल है अपने, वो मोस्टली जो हायर ऑर्गेनिजम्स है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। डिप्लॉयड सेल्स में दो क्रोमोसोम्स होंगे, राइट। ये देखो मॉर्फोलॉजिकल एंड स्ट्रक्चरली दोनों क्रोमोसोम्स जो है वो कैसे है, सेम है, हाइट में भी सेम है, राइट, स्ट्रक्चर में भी सेम है, राइट। एंड प्लस उनके जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये क्या रहेंगे, सेम। यू कैन सी ये ह्यूमन बींग्स का है, ये अपना है, फाइन। अपना जो ये 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होता है उसमें से ये जो 22 पेयर्स के जितने भी क्रोमोसोम है, यू कैन सी सबके हाइट और स्ट्रक्चर जो है पेयर में, राइट, पेयर में सबका हाइट एंड स्ट्रक्चर कैसा है, सेम, राइट। मतलब कि फर्स्ट क्रोमोसोम है तो फर्स्ट क्रोमोसोम का हाइट और स्ट्रक्चर जो भी है वो सेम रहेगा, फोर्थ है तो फोर्थ का हाइट एंड स्ट्रक्चर सेम रहेगा, 22 है तो 22 का हाइट एंड स्ट्रक्चर सेम रहेगा, राइट। बट व्हेन इट कम्स टू 23 दैट्स अ सेक्स क्रोमोसोम, फाइन। तो सेक्स क्रोमोसोम तो अलग होगा, राइट। फीमेल का XX होगा एंड मेल का XY, तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। हम कौन से कंसिडर कर रहे हैं, सिर्फ ऑटोसोम्स वाले की बात कर रहे हैं, राइट। तब ये जो दो क्रोमोसोम्स है, ये जो दोनों क्रोमोसोम्स को हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। एंड होमोलोगस क्रोमोसोम के सपोज कि ये वाला जो पोजीशन है, तो दोनों क्रोमोसोम के यही सेम पोजीशन पे सेम जीन प्रेजेंट रहेगा, एंड दैट इज कंसिडर एज व्हाट, होमोलोगस क्रोमोसोम। इसलिए बोला है कि अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन में सपोज कि यहाँ पे टॉल वाला है और यहाँ पे कौन सा है, ड्वार्फ वाला, फाइन। तो अभी कौन सा क्रोमोसोम पास ऑन हो रहा है ये ऑफस्प्रिंग में, उसके हिसाब से वो ऑफस्प्रिंग या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ बनेगा, समझा। दिस क्रोमोसोम मीन्स व्हाट, मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली बोथ द क्रोमोसोम्स विल बी व्हाट, सिमिलर, और यू कैन से बोथ द क्रोमोसोम्स आर सेम, फाइन। एंड प्लस जो भी जीन्स रहेंगे दे विल बी लोकेटेड ऑन द सेम पोजिशन, फाइन टिल हियर, राइट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। सो सी नेक्स्ट क्या है, होमोजाइगस और प्योर लाइन्स। अभी होमोलोगस क्रोमोसोम और होमोजाइगस
में को मिक्सअप मत कर देना, ये दोनों अलग अलग टर्म है, राइट। होमोजाइगस को हम और भी क्या बोलते हैं, प्योर लाइन्स, मतलब कि जो भी कैरेक्टर्स है दे आर आइडेंटिकल और आर जेनेटिकली प्योर, राइट। नाउ हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी ये पी है, ये पी का एग्जाम्पल है, ये पी के सीड्स हैं, राइट। पी के सीड्स में हमने देखे थे कि सीड का जो शेप है, ये दिस इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट, सीड शेप। तो सीड शेप भी दो टाइप के हैं, या तो सीड स्मूथ होगा या तो सीड कैसा होगा, व्रिंकल, कैसा होगा, व्रिंकल। तो हमें पता है कि सीड शेप जो है वो भी दो टाइप के हैं, मतलब उसके भी दो अलील्स है, एक स्मूथ है और एक कौन सा है, व्रिंकल, राइट। अभी स्मूथ जो है वो डोमिनेंट है, तो हमने अभी बताया कि डोमिनेंट वाले को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और व्रिंकल जो है वो रिसेसिव है तो उसको हम स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, हम डब्ल्यू नहीं लिखेंगे, जो डोमिनेंट का जो फर्स्ट लेटर है उसी को हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे, फाइन। अभी होमोजाइगस और प्योर लाइन्स का मतलब क्या होता है कि ये जो कैरेक्टर्स है वो दोनों कैसे रहेंगे, आइडेंटिकल एंड दे आर अबाउट जेनेटिकली प्योर, राइट। सो व्हेनेवर वी राइट द होमोजाइगस और प्योर लाइन के कैरेक्टर्स, तो हम क्या करेंगे, ये स्मूथ वाले को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल एस, एंड अगर रेसेसिव वाला है तो वो क्या लिखेंगे, स्मॉल एस। तो यू कैन सी ये कैपिटल एस जो ये स्मूथ वाला सीड पी दे रहा है, राइट, एंड स्मॉल एस जो है वो व्रिंकल वाला दे रहा है। मतलब कि ऐसे अगर हम लिखेंगे, राइट, ये दोनों कैरेक्टर्स अगर हम सेम लिख रहे हैं, दोनों जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसे हम क्या बोलेंगे, होमोजाइगस। मतलब कि वो प्लांट को तुम 3 जनरेशन से या क्या 4 जनरेशन तक अगर तुम सेल्फ पॉलिनेशन भी करवाओगे तो भी वो तुम्हें सेम ट्रेट देके देगा, राइट। मतलब एवरी जनरेशन में अगर स्मूथ वाला है तो एवरी जनरेशन में वो स्मूथ भी ही देगा, अगर व्रिंकल्ड वाला है तो वो एवरी जनरेशन में व्रिंकल्ड वाले ही देगा, समझा। नेक्स्ट सी हेट्रोजाइगस और हाइब्रिड। अभी यहाँ पे कैरेक्टर्स जो हैं दोज आर नॉट आइडेंटिकल, कैरेक्टर्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल नहीं होते हैं, राइट। तो देखो अभी ये वाला जो है कैपिटल एस स्मॉल एस, राइट, ये जो हमने डिनोट किया है कैपिटल एस स्मॉल एस, दिस इज नथिंग बट व्हाट, हेट्रोजाइगस। इसको क्या कंसिडर करते हैं, हेट्रोजाइगस। मतलब कि देखो अगर होमोजाइगस है तो दोनों के दोनों लेटर्स कैसे लिखेंगे हम, सेम, कैपिटल एस, मतलब कि ये स्मूथ हो गया। अगर स्मॉल एस है तो ये हो गया व्रिंकल, राइट। लेकिन अगर ये कैपिटल एस है एंड एक छोटा एस है, राइट, मतलब कि ये क्या हो गया, हाइट्रोजाइगस हो गया, राइट। एंड हाइट्रोजाइगस के कंडीशन को ही हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। अभी यहाँ पे ऐसे है ना कि ये बना अगर दोनों कैपिटल एस है तो हमें पता है कि ये क्या है, डोमिनेंट। अगर ये दोनों स्मॉल एस तो हमें पता है कि ये क्या है, रिसेसिव। बट व्हेन इट कम्स टू दिस केस, एक कैपिटल एस है और एक छोटा एस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम क्या कंसिडर करेंगे, डोमिनेंट। क्यों, क्योंकि डोमिनेंट वाले के प्रेजेंट में रेसेसिव वाला अपना एक्सप्रेशन नहीं दे सकता, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। सो अगर एक भी अगर डोमिनेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है तो वो जो इंडिविजुअल है, मतलब कि हाइट्रोजाइगस वाला जो कंडीशन है वो भी किसकी तरह एक्ट करेगा, डोमिनेंट की तरह ही एक्ट करेगा। तो भले यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस है, भले यहाँ पे कैपिटल एस स्मॉल एस है, लेकिन वो क्या दिखाएगा, स्मूथ दिखाएगा या व्रिंकल दिखाएगा, इट इज़ गोइंग टू शो यू व्हाट, स्मूथ सीड पी। क्या दिखाएगा, स्मूथ सीड पी। तो समझा, होमोजाइगस कंडीशन में हम क्या लिखते हैं, दोनों के दोनों लेटर्स कैसे लिखते हैं, सेम, राइट। लेकिन हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक कैपिटल होता है और एक क्या रहेगा, स्मॉल, राइट। लेकिन होमोजाइगस में दोनों अगर कैपिटल ऐसे तो भी वो डोमिनेंट है। हेट्रोजाइगस वाले कंडीशन में भी अगर एक डोमिनेंट कैरेक्टर है तो भी वो क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा, मतलब स्मूदी दिखाएगा। एंड रिसेसिव वाला तब भी एक्सप्रेस कर पाएगा अगर दोनों के दोनों उसके एस स्मॉल लेटर में होंगे तो ही, मतलब कि अगर वो प्योर है तो ही वो एक्सप्रेस कर पाएगा, लेकिन अगर डोमिनेंट के साथ है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, फाइन। अभी देखो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों जो टर्म है इट वाज गिवन बाय होम, बेटसन, राइट। सो देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच आर गिवन बाय बेटसन, राइट। आगे भी हमने देखा कि बेटसन ने एक हाथ टर्म डिनोट किया है, राइट। सेम वे अब देखो नेक्स्ट क्या है, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, दिस 2 टर्म्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मतलब जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि ये जो हम लिख रहे हैं ना कैपिटल एस स्मॉल एस एस, ये जो हम डिनोट कर रहे हैं दैट इज नोन एज व्हाट, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो ऐसे जो हम डिनोशन दे रहे हैं जीन्स को उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन।
फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, मतलब देख के हमें पता चलता है कि वेदर ये सीड स्मूथ है, वेदर ये सीड रिंकल है, या स्टेम का हाइट टॉल है, या स्टेम का हाइट ड्वार्फ है। तो उससे क्या बोलते हैं हम, फिजिकल अपीयरेंस, मतलब देख के तो हमें पता चल गया कि ये टॉल है या ड्वार्फ है या स्मूथ है या फ्रिंकल्ड है, लेकिन तुम्हें ये पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सा वाला जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, वेदर वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, राइट, ये तो हमें पता नहीं चलता है, राइट। इसीलिए ये जो हमने डिनोशन किया है उसे हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन। सो एंड बोथ दिस टर्म्स आर आल्सो गिवन बाय होम, जोहानसन। किसने दिया था, जोहानसन ने। फाइन। सो दिस वर दी some of the genetical terms that are very important before we start the experiment. Okay, and अब हम देखते हैं कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सिलेक्ट किया, राइट। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। देखो मेंडल ने हनी बी के ऊपर भी काम किया था, उसने राजमा के ऊपर भी काम किया था, उसने माइस के ऊपर भी काम किया था, राइट, लेकिन उसने पी प्लांट के ऊपर ही काम क्यों किया एंड उसी से उसको सक्सेस क्यों मिला, उसके कुछ रीजंस हैं जो हमें देखने हैं। ओके, सो सी, पहला क्या है, एनुअल प्लांट है। पी प्लांट कैसा है, एनुअल प्लांट है, मतलब कि तुम साल में उसे 3 या 4 बार उसे तुम आराम से ग्रो कर सकते हो, राइट। सो अगर तुम 3 या 4 बार उसे ग्रो कर सकते हो तो तुम्हें उतने ही सैम्पल्स मिलेंगे, उतनी ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडीज़ कर पाओगे उसके ऊपर, राइट। अगर तुमने माइस को ले लिया तो उसको टाइम लगेगा ऑफस्प्रिंग्स देने को, राइट, बट ये प्लांट का क्या है, तुम्हें बहुत सारे सीड सैंपल्स में मिल जाते हैं ना, ऑफस्प्रिंग्स बहुत सारे मिलेंगे, राइट, तो स्टडी करने के लिए भी काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो ये पी प्लांट का जो फ्लावर है वो कैसा है, बाइसेक्सुअल, मतलब यही फ्लावर में, सेम फ्लावर में मेल गैमेट्स भी प्रेजेंट है एंड फीमेल पार्ट्स भी प्रेजेंट है, राइट। मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, राइट। प्लस ये फ्लावर का जो अरेंजमेंट है वो भी बहुत ईजी था। ओके, नाउ सी नेक्स्ट क्या है, नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन। बट ऑब्वियस अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है, मेल एंड फीमेल एक ही में है, देखो यहाँ पे मेल एंड फीमेल अगर एक में ही है तो आराम से वो सेल्फिंग कर सकता है, राइट। सो आराम से ये जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पे जाके स्टिक होके अपने आप सेल्फ पोलिनेट कर सकता है, राइट, कैन गिव अप सब प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग, easy cross pollination, or you can say easy hybridization, right, or you can say easy artificial cross. Why? Because hybridization या artificial cross या जो भी क्रॉस पॉलिनेशन हम बोल रहे हैं वो हम कैसे करते हैं, बाय द मेथड नोन एज व्हाट, इमैस्कुलेशन, राइट। और इमैस्कुलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर बिफोर इट गेट्स मेच्योर। फाइन। सो अगर सपोज कि हमने ये वाले प्लांट को हमने क्या कंसिडर किया है, मेल, एंड ये वाले प्लांट, सॉरी, अगर सपोज कि हमने ये वाले फ्लावर को मेल कंसिडर किया है एंड ये वाले फ्लावर को अगर हमने फीमेल कंसिडर किया है तो हम क्या करेंगे, फीमेल वाले फ्लावर में से मेल वाला जो पार्ट है बिफोर इट गेट्स मेच्योर हम क्या करेंगे, उसे निकाल देंगे। तो यू कैन सी रिमूवल ऑफ एंथर्स। जैसे ही ये मेच्योर हो जाएगा तो मेल वाले फ्लावर से हम क्या करेंगे, पोलन ग्रेन्स को लाएंगे और स्टिग्मा के ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे, तो इट विल कैरी आउट वॉट दी क्रॉस पॉलिनेशन। तो हमने हमारे हिसाब से सिलेक्ट किया ना प्लांट को, राइट। सपोज ये टॉल वाला होगा और ये ड्रॉप वाला होगा, तो टॉल वाले को हमने मेल कंसिडर किया, ड्रॉप वाले को फीमेल कंसिडर किया, एंड फिर हमने टॉल वाले के गैमेट्स को ला के ड्रॉप वाले के फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर क्या कर दिया, स्प्रिंकल, एंड देन हमें ये प्रोजेनी मिल जाएगी, राइट। सो ऐसे हम क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इट वॉज ऑल्सो क्वाइट ईजी बिकॉज आराम से हम मेल एंथर्स को रिमूव कर सकते थे, राइट। नेक्स्ट क्या है, इजी टू कल्टिवेट, बट ऑब्वियस तुम एक छोटे से स्पेस में भी उसको आराम से कल्टिवेट कर सकते हो, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान व्यान रखने की भी ज़रूरत नहीं होती है, और प्लस हमें सैम्पल्स बहुत सारे मिल जाते थे। नेक्स्ट क्या है, सीड्स आर लार्ज। इसके जो सीड्स होते हैं देखो कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट। सो इट्स क्वाइट ईजी कि हम आराम से फिजिकल अपीयरेंस से फिनोटाइपिक हम देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। मेंडल वॉज सो लकी कि उसने जितने भी 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसे मिले थे वो सारे के सारे डोमिनेंट एंड रिसेसिव दोनों दिखा रहे थे, तो उसका काम बहुत इजी हो गया था। एंड उसको कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिले थे, 7 पेयर्स, मतलब 14 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट, जो हमने लास्ट वीडियो में ये वाला देखा था, राइट, कि 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उसने सिलेक्ट किए थे पी प्लांट के, जिसको हम पाइसम सटाइवम भी बोलते हैं, राइट। कौन कौन से कैरेक्टर्स थे, एक हाइट,
सीड शेप, सीड कलर, फ्लावर कलर, पॉट शेप, पॉट कलर एंड फ्लावर पोजीशन। सब में हमने देखा था कि सबका एक डोमिनेंट ट्रेट भी होता है एंड एक रेसेसिव ट्रेट भी होता है। तो मेंडल वाज सो लकी कि उसने जो भी पेस्ट कंसीडर किए थे सब में डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाला कैरेक्टर प्रेजेंट ही था। इसके वजह से उसके जो भी उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसमें उसको प्रॉपर रिजल्ट्स भी मिले थे एंड ही गॉट सक्सेस इन दोज कैरेक्टर्स, राइट। बट इसके बारे में भी थोड़ा एक्स्ट्रा तुम्हें पढ़ना है। सी यहाँ पे भाई सेम है बट थोड़ा एक्स्ट्रास के साथ है, राइट। अभी देखो यहाँ पे ये कैरेक्टर्स है, ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं, राइट, डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाला, ये सब हम देखेंगे। लेकिन ये सिर्फ तुम्हें अंडरस्टैंडिंग के लिए मुझे सिर्फ क्रोमोसोम नंबर बताने हैं, इसीलिए, राइट। कि एक्सपेरिमेंट जब किया था, जब उसने F2 रेशियो निकाला तो यू कैन सी ऑन एन एवरेज सब में 3:1 का रेशियो है, राइट। सो दैट इज द रीजन आई टोल्ड यू कि मेंडल वाज सो लकी कि उसने जो भी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सिलेक्ट किए थे, एक तो सब में डोमिनेंट एंड रेसेसिव वाले कैरेक्टर्स थे, प्लस उसने उसको जो भी रेशियो मिले वो भी ऑलमोस्ट ऑल द रेशियोज वर नियर बाय 3:1। इट्स रीज़न ऑल्सो, ये भी एक रीज़न है कि मेंडल बहुत फ़ायदेमंद हुआ था पी प्लान सिलेक्ट करने में। प्लस ये जो कैरेक्टर्स है, ये जो भी कैरेक्टर्स हैं पी प्लान के, ये सब कैरेक्टर्स भी मैंने अभी तुम्हें बताया कि वो किस पे होते हैं, क्रोमोसोम पे। एंड क्रोमोसोम में किधर होंगे, इन डीएनए में एक स्पेसिफिक सेगमेंट पे ये जीन प्रेजेंट होता है, राइट। सो ये कौन कौन से क्रोमोसोम पे ये कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे दिया है। तो यू कैन सी सीड शेप जो इट इज़ ऑन अ क्रोमोसोम नंबर 7, सीड कलर फर्स्ट पे था, पॉड शेप 4th पे है, पॉड कलर 5th पे है, फ्लावर कलर 1st पे है, फ्लावर पोजीशन 4th है एंड स्टेम हाइट 4th पे, राइट। सो दीज आर दी क्रोमोसोम नंबर जिस पे ये सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे, राइट। एंड ये किसने बताया था, तो देयर वाज वन साइंटिस्ट नोन एज एस प्लिक्सिट, राइट। कौन था ये साइंटिस्ट, एस ब्लिक्सेट। मतलब कि मेंडल के बाद एस ब्लिक्सेट करके कोई साइंटिस्ट आया था, उसने भी इसके ऊपर पढ़ाई की होगी। तो उसने बताया कि ये जो भी कैरेक्टर्स है दोज आर ऑन दिस क्रोमोसोम्स, फाइन। मतलब कि 1st, 4th, 5th और 7th, ये 4 ही क्रोमोसोम पे ये सारे के सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, समझा। सारे के सारे नहीं, मतलब 1st पे जो बताया, एक तो सीड कलर है और एक क्या है, फ्लावर का कलर। 4th पे कौन है, एक पॉड शेप है, फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट। 5th पे के कौन है, सिर्फ एक ही है, पॉड कलर। और 7th पे भी एक ही है, कौन है, सीड शेप, राइट। जैसे ये 4 क्रोमोसोम पे अलग अलग कैरेक्टर्स प्रेजेंट है, गॉट इट। सो these are the reasons why Mendel got the success. Plus we also saw some of the genetic terms which are actually very important, and ये भी तुम्हारे लिए बहुत important था कि क्यों मेंडल ने ये सिलेक्ट किया पी प्लान, राइट। तो ये रीज़न वैसे भी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, तो ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ही है, समझा। एंड ये तुम याद रखना बिकॉज ये तुम्हारे एंट्रेंस के लिए काम आ सकता है तुम्हें, अलॉन्ग विद द साइंटिस्ट नेम। जेनेटिकल टर्म्स में भी जो साइंटिस्ट के जो नेम दिए है कि किसने कौन सा टर्म या कॉइंड किया है उस टर्म को, वो भी इम्पॉर्टेंट ही है बिकॉज वो भी तुम्हें एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, गॉट इट। सो योर आई एंड दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स कैसे मेंडल ने किए थे। उसके पहले हम स्टेप्स देखेंगे एंड उसके बाद वी विल गो इनटू द प्रॉपर एक्सपेरिमेंट्स which were carried out by Mendel. Fine. I just hope you understood, and this video is as important as the other videos of this chapter. Fine. So till that, thank you.